آپ نے کہا کہ دو تکبیر کی جو روایت ہاں وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے. وہ کیا چیز ہے وہ؟ ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود اچھا صحابہ جو ہے تکبیر کی کلمات یہ ادا کرتے تھے. تکبیرات عام طور سے صحابہ سے صحابہ کے آثار ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن شیبہ اور مصنف عبد الرزاق یہ ایسی کتاب ہے جس میں صحابہ کے آثار زیادہ تر اہتمام کے ساتھ جمع کیے گئے. صحابہ کے آثار، ان کے اقوال، ان کے افعال زیادہ ان کتابوں میں جمع کیے گئے. مصنف ابن شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں. یہ آثار کی کتاب، ان کو آثار کہتے ہیں. یہ آثار صحابہ سے متعلق. یہ کتابیں کب آئی اس میں؟ جیسے بخاری شریف جو ہے، مسلم شریف جو ہے، یہ کافی اس میں مصنف عبد الرزاق مقدم ہے. مصنف عبد الرزاق امام احمد بن حنبل کے شعب استاد ہیں. ہاں انہوں نے لکھا. اس کے نسخے جو ہیں یہ انگلش میں نہیں موجود ہیں؟ نہیں انگلش میں نہیں. یہ بہت ضخیم کتابیں ہیں انگلش میں. دو تکبیر ہیں سر. یہاں تک کوئی اتنا وہ نہیں اہم ہے. تین کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے دو بہتر ہے. ہاں ہاں روزے. ہاں ان ایام میں جو مخصوص اعمال ہیں، تکبیرات ہیں. فاکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل والتحمید. ان دنوں میں آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جو ہے کثرت سے، اللہ اکبر کثرت سے پڑھا. تو یہ تسبیح تحلیل کے ایام ہیں. اسی طرح یہ ایام روزے کے ہیں. جیسے کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 من ذی الحجہ. ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے. ذی الحجہ میں 9 روزے رکھتے تھے. پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تک کا روزہ مشروع ہے، اور خاص طور سے 9ویں کا. کہ روزے بھی ایام میں یہ محبوب عمل. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس کے بعد یہ کنٹینیو کرتے ہیں جس کے اللہ اکبر کبیرہ. ہاں وہ بھی ثابت. تو وہ حاصل ہے. لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں وہ کوئی بات نہیں. مولانا نماز میں لقمہ دیے تو سجدہ سہو کرتے ہیں حناف کے لیے، تو جائز ہے؟ نماز میں تلاوت میں لقمہ دیتے اور سجدہ سہو کرتے ہیں، کیا ہے اس طرح؟ کون سجدہ سہو؟ دیکھیے حناف کے ہاں لقمہ دینا جائز نہیں. سمجھے؟ لقمہ دینا، امام غلطی کر رہا ہے قرأت میں تو اس کو لقمہ دینا جائز نہیں. کتاب میں لیکن دیتے ہیں، لیکن لوگ دیتے ہیں. فقہ حنفی کی روشنی میں جائز نہیں. لیکن پھر سجدہ سہو کرتے ہیں. سجدہ سہو اسی لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں ہوگی. لقمہ قبول کر لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن غلطی کر لو. جو لقمہ دیتے ہیں اس کی نماز نہیں، اگر امام نے مان لیا تو امام کی نہیں. ہاں امام کی نہیں. نہیں لقمہ دینا چاہیے، لقمہ دینا چاہیے. اللہ رسول کی ہے فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. جب میں بھول جاؤں تو اس کو یاد دلا دیا. اگر مان لیا تو کسی کی نماز. لا الہ الا اللہ. مسائل ہے، اجتہادات علماء. ٹھیک ہے، نماز کی کیفیت ہم نے پڑھی. اب تو سب کو یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ ہاں بتائیں گے کھڑے ہو کر آپ لوگ کھڑے ہو کر بتائیں گے کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں سب کھڑے ہو جاتے ہیں. سب کھڑے ہو جائے. قبلہ رخ کھڑے ہو جائے. کس طرف؟ ہاں کھڑے ہو جائے.
पहले तो बताइए कैसे खड़े होंगे सब? सब कैसे बनाएंगे सब? हाँ, सब कैसे बढ़ाएंगे? आगे इधर नहीं, इधर इधर नहीं हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। सब कैसे होंगे? 5 लोग हैं इधर। तीन बनाइए, तीन। पहले सब कदम से कदम, कंधे से कंधा, कदम से टखने से टखना मिलाइए। टखने से टखना, हाँ, उंगली से उंगली नहीं। टखने से टखना मिलाइए। एड़ी बराबर खड़ी हो तो अंगूठा बराबर करने से सब नहीं सही। किसी का पैर लंबा होता है, किसी के पैर छोटा। हाँ, एड़ी बराबर, एड़ी से ही करनी चाहिए तब सब सही होगा। जब सही करेंगे तो एड़ी का हिसाब, एड़ी सही करेंगे तो सब सीधी हो। क्योंकि पंजा किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। तो पंजे का बराबर करेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। हाँ, नहीं बनते हैं, गलत है। बनती नहीं है तो मतलब क्या? एड़ी बराबर, एड़ी बराबर। आगे का बराबर नहीं हो सकता। वही बराबर एड़ी बराबर मेरे को ऐसा करना पड़ा। क्योंकि वो फिर एकदम ऐसा हो जाता है ना। थोड़े दिन आपको तकलीफ होगी। सीधे सीधे निशा निशा नहीं मतलब नहीं मतलब यार ठीक है ना। अच्छा बेटा रफादान कैसे करेंगे? ये जमात खड़े ये हथेली जो है बिल्कुल किबले की तरफ, कंधों के बराबर या कानों के बराबर, कंधों के बराबर या कानों के बराबर। हथेली बिल्कुल किबला रो, उंगलियां खुली हुई नहीं, ये नहीं ऐसे नहीं, तो वही हालत में किबले की तरफ। कान पकड़ना नहीं है, कान को टच नहीं करना। कान के बराबर या कंधे के बराबर, या कान के बराबर उठाएं या कंधे के बराबर। और अगर ऐसा उठाएं कि हथेली जो है ये कान के कंधे के बराबर रहे, उंगलियां कान के बराबर रहे, दोनों पर अमल होगा एक साथ। एक मिनट शेख जरा। हाँ हाँ, तो होना चाहिए, बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह के फरमाते बीच में जगह है, वहाँ शैतान आगे खड़ा है। इसलिए दो आदमी के दरमियान नहीं होना चाहिए। यार दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग व्हिच शुड कम इन। ये क्या है? कि या तो तुम मिलके खड़े हो, नहीं सही। अल्लाह के रसूल कहते हैं या तो तुम मिलके खड़े हो गए, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा। इसलिए हज़रत अनस कहते हैं हम मिलके क्योंकि नहीं खड़े होते, इसलिए हमारे दिलों में इख्तिलाफ पैदा होता है। समझे? तो आज मुसलमानों में इख्तिलाफ उसका एक सबब ये भी ज़ाहिर में इख्तिलाफ होगा तो बातें में भी इख्तिलाफ, दिल में भी इख्तिलाफ होगा। सब में अभी क़याम में भी वही वापस हो जाना, क़याम के वक्त, रुकू के वक्त वही कैफियत होगी। तो गर्दन करते हुए कंधे के बराबर या कानों के बराबर जो है ये हाथ होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, या बहुत से लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। हथेली हमेशा किबले की तरफ होनी चाहिए, हथेली किबला रुख होना चाहिए। और हाथ बांधे हैं कैसे? सीने पे। ये देखिए, ये हथेली इस गट्टे पर रखें, इस तरह रख लें ऐसे, या इसको इसके ऊपर रख करके ये दोनों कलाई पर, इस कलाई पर रख लें आप। ये या इस पर रख लें इस तरह, या तीसरी शक्ल है कि ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें। कब्ज भी है और वज़ा भी, तीनों शक्लें जो है सही। हाँ? नहीं पकड़ना नहीं, ऐसे रखिए सीधे। ये गट्टा जो है ये हड्डी, इस हड्डी पर रख करके इस तरह रखें। अच्छा बात है, लोग ऐसे पूरी सीधी रखे ना, सीधी है। कर लें या इसको या तो इस तरह रख लें, ये बिल्कुल ऐसे रखें, सीधे रख लें, या इसको इस पर रखें और ये जो है इस तरह, या इसको ऐसे पकड़ लें।
लंबी नमाज के लिए पकड़ना है। तीनों शक्लें। हाँ बाद वो अहनाफ में ये तरीका होता है दोनों पर एक साथ अमल का। उनके यहाँ वज़ा और कब्ज़ एक साथ होना चाहिए। तो क्या 2 उंगलियों से पकड़ लें और 3 उंगलियाँ सीधी रखें। 2 उंगलियों से पकड़ लें और ये 3 उंगलियाँ जो है सीधी रखें। ये अहनाफ की तावील है, लेकिन जो है कि या तो पकड़ना है या रखना है। वज़ा और कब्ज़ दोनों है उसमें बात है। लेकिन जब ये ऐसा हो जाता है या फिर ऐसा होता है, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, सीधे होना नहीं हो सकता। ऐसा रखते हैं चेक बाजू वाले को रखते हैं। पहले पैर और थोड़ा सा कितना नजदीक पैर कितना लंबा नहीं ना, हाथ के अलावा पैर जो है देखो ना, पैर कितना पैर तो बॉडी के अपने अपनी बॉडी के हिसाब से पैर का फासला अपनी बॉडी के हिसाब से। पैर में फासला जो हो अपनी बॉडी के जितने में आप आसानी से उड़ गए, ना तो बिल्कुल फैला लें ऐसे और ना बिल्कुल ऐसे समेट। अच्छा पैर जो है सीधे होने चाहिए। हाँ पैर किबला रुख होने, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं। नहीं वो तो पैर किबला रुख होने। बॉडी के हिसाब से फैला नहीं सकते क्या? बाजू वाला शख्स बहुत कभी दूर है, अपनी बॉडी के बाजू वाला कभी दूर है। आप इमाम के दाएं खड़े हैं या बाएं? अगर आप इमाम के दाएं खड़े हैं तो अपने बाएं वाले से आपके मिलने की जिम्मेदारी, समझे? अगर आप इमाम के दाएं खड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने से बाएं वाले से सिमट के आप मिलकर खड़े। दाएं वाले की आपकी जिम्मेदारी नहीं। बताइए कि नहीं कि आप पैर फैलाते चले जाए। बहुत से लोग इसी उसमें पैर फैलाते चले, नहीं आपकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी, उसको पकड़ कर खींच लीजिए आप। और अगर आप खींच सकते खींच लीजिए उसको अपने। हाँ नमाज में खींच सकते। और अगर आप इमाम के बाएं खड़े हुए हैं, दाएं नहीं है बाएं हैं, तो अपने से दाएं वाले से आपकी जिम्मेदारी अपने दाएं वाले से मिलकर खड़े हुए, बाएं वाला वो आपसे मिले। ये सब याद रखना। और हम लोग इसी वजह से भाई मिलना है, दूर है, इधर फैला दिए इधर फैला दिए तो कैसा बन जाता है। ये गलत। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर इमाम के दाएं हैं तो अपने से बाएं से मिलकर खड़े होइए, और अगर आप इमाम के बाएं हैं तो अपने से दाएं से। अच्छा कभी ऐसा होता है कि हम मतलब इमाम के राइट साइड पे और हम किसी को टच कर रहे हैं तो बंदा हट जाता है। या तो उसकी जिम्मेदारी, और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई और उसकी अपनी जिम्मेदारी। अल्लाह मुकल्लफ करता है क्योंकि उसकी वो पकड़ना नहीं, ऐसे पकड़ लेते ऐसे पकड़ना नहीं। ये जो है कट्टे से ऊपर नहीं, इस पे होना वहाँ। हाँ और कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते। वो सुडानी जो है ऐसे पकड़ते हैं, बहुत से मलबारी भी ऐसे पकड़ते हैं। वो दिल पकड़ रहे हैं ऐसे, दिल इधर है ना, वो दिल का वो ये सब सारी आप सीधे जो है सीने पर जो है जिससे अभी आगे आएंगे उठने के बाद जो है जब जब होते हैं उसी वक्त करना चाहिए सफेदिन, या सजदे में जाते वक्त करना चाहिए? रुकू से उठते हुए करने, सजदे में जाते हुए नहीं। रुकू में जाते हुए और रुकू से पहले भी रुकू आने दें। बहुत समस्या है कि बहुत ही कम जगह होती है, इसके उसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है वो तो शेख भी दिखना चाहिए ना। ना तो बहुत ऊपर बांधिए ना नीचे बांधिए, में सीने पर। अगर आगे जगह खाली होगी तो एक स्टेप जा सकता है। हाँ लेफ्ट राइट आगे। हाँ आगे दाएं बाएं जो है आप एक कदम आगे हो गए, कदम दाएं हो गए, बाएं हो गए, जरूरत क्यों? हम एक कदम आगे हुए और आगे और एक से खाली हो गया तो फिर जा सकते
जो भी जगह एम्प्टी स्पेस है यू हैव टू फिल दैट स्पेस दैट्स आगे की सब में जगह खाली है तो आपको उसको फौरन तो चाहिए कि उस सफ वाले पुर करें, फौरन तो चाहिए कि उस सफ के लोग उसको मिलकर पुर करें। समझ में आता है कि नहीं? उस सफ वालों को मिलकर पुर होना चाहिए। और अगर खाली है, नहीं कोई पुर हो रहा है, तो आप अगर उठ के चले गए तो ये भी जायज़ है। समझ में आता है? और तो उस सफ वालों के दाएँ बाएँ जो हैं उनको चाहिए कि वो मिल जाए, उनकी जिम्मेदारी है कि वो मिल करके उस जगह को पुर कर ले। होने की जगह क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ फिर खाली हो जाएगा, फिर आपके पीछे वाला आएगा वहाँ खाली होगा। तो बेहतर यही है कि जो उस सफ के लोग हैं वो मिल जाए। अगर नहीं मिलते हैं, खाली है, पीछे वाला कोई चला जाता है जगह पुर करने के लिए तो जाए। लेकिन ध्यान तो फिर भी रहेगा ना, आखिरी में हो जाएगा ना क्या? आगे में होगा, बीच में सब कट ही नहीं चाहिए, क्योंकि मन खता सफर खता हो जाए। सब काटता है अल्लाह उसको काटता है, मसला सफर मसल हो जाए, सब मिलाता है उसको अल्लाह ताला अपने से मिला लेता है। सब कटना नहीं चाहिए, सब मिल के खड़ा होना। तो अब रुकू में जाते वक्त क्या करेंगे? नजर निगाह हमेशा सजदे की जगह पर, निगाह खड़े होते हुए सजदे की जगह पर निगाह, इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखें, बल्कि सजदे के मुकाम पर देखें, ताकि तवज्जो में एक सुई पैदा हो, तवज्जो में इससे जो है एक सुई पैदा हो। पूरी नमाज में वही है ना, और पूरी नमाज वही देखो। वही रहे। जैसे इमाम के हमेशा राइट में प्रेफरेंस देना चाहिए, कोई मिल करने के लिए इमाम जो खड़ा है उसके हमेशा राइट में जाना चाहिए। और राइट वालों को फजीलत आती है लेफ्ट वालों को, फजीलत हाँ राइट में खड़े होने वालों को, बाएं खड़े होने वालों को फजीलत आती है। अच्छा, राइट पहले बने, लेकिन इस तरफ वाले होने या इमाम की तरफ से उस तरफ वाले होने? नहीं इमाम जैसे है, इमाम के राइट ये है और बाएं ये है, राइट ये है इमाम के राइट, इमाम के राइट, इमाम किबला रुख खड़ा होगा तो राइट ये है ना, और लेफ्ट ये है, इमाम के राइट खड़े होने का। लेकिन और शेख एकदम मतलब सीधे अब इमाम के पीछे है जो, हाँ सब हो जाए इमाम के पीछे वो पीछे ही सब शुरू होगी और पीछे से। ने फरमाया जो इल्म वाले हैं, फضل वाले हैं, समझ बूझ वाले हैं, वो मेरे पीछे करीब, इमाम के करीब उन लोगों को खड़ा होना चाहिए जो इल्म रखने वाले हैं, यानी कि इमामत की जिम्मेदारी निभा सके। भाई इमाम को कोई अर्जा पेश है तो फौरन पीछे से खींच कर आगे बढ़ा दे। जैसे हज़रत कौन नमाज पढ़ा रहे थे, आप पर जब हमला हुआ तो आपने फौरन अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ा और अपनी जगह पर खड़ा कर, और नमाज अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकम्मल, नमाज साहबा छोड़ के भागे नहीं, नमाज मुकम्मल हुई। और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने किसी इमाम के पीछे ऐसे लोगों को होना चाहिए जो इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे सकते हो, नमाज पढ़ा सकते। बच्चे जो नहीं होना चाहिए कि जो नमाज पढ़ा सके, जो नमाज पढ़ा सके उसको जो होना चाहिए। अच्छा, बात आ रही थी शेख, आप कहते हैं कि जो यानी राइट से अपने दाईं तरफ से हाँ तो दाएं को फजीलत है दाएं पर, लेकिन सब जो शुरू होगी ये नहीं कि एक तरफ खड़े रहे एक तरफ खाली रहे, ये सही नहीं। तवाज़ुन होना चाहिए सफ में, तवाज़ुन, ये नहीं कि बाएं बिल्कुल खाली रहे दाएं ज़्यादा खड़ा रहे। लेकिन अगर दाएं को ज़्यादा है बाएं कम है कोई बात नहीं, लेकिन ये कि बाएं रहे ही ना लोग और सारे लोग दाएं ही खड़े रहें, तो बीच इमाम को बीच में रहना चाहिए। हाँ शेख, लेकिन ऐसा है ना कि दाएं वाला होगा पहला, फिर बाएं, फिर दाएं, बैलेंस जो है सही रखना चाहिए। ठीक है। फिर रुको अगर ये फजीलत ऐसे होती तो फिर इमाम को वहाँ दीवार सर करवाना ताकि सब रुकू कैसे करेंगे? रुकू में जाइए तो दोनों तकबीरात जो होंगे वो हरकत के साथ, जैसे अल्लाह, समझे? तकबीर भी और हरकत भी साथ में होनी चाहिए, दोनों साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई करते क्या करके फिर अल्लाह ऊपर कहते हैं, हाँ, खड़े होकर पहले अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह कहते नहीं। हरकत और कौल और फेल, कौल फेल दोनों में मुताबिकत होना चाहिए, इसका इंतजाम करना चाहिए कौल और फेल। लेकिन अगर आगे पीछे थोड़ा हो जाए तो कोई फर्क नहीं, नमाज हो जाएगी, आगे पीछे हो जाए तो नमाज हो जाएगी,
لیکن سنت یہ ہے کہ قول اور فعل میں مطابقت جو ہے ہونی چاہیے کہ ایک ساتھ ہو قول اور فعل. کیسا کریں گے ذرا بتائیے. اب جب پہنچ جائیں تو آواز بند, رکوع میں پہنچ جائیں تو آواز بند ہو جائے, رکوع سے اٹھے تو کھڑے ہو جائیں تو آواز بند ہو. امام صاحب کے لیے بھی سیم ہے. ہاں امام صاحب کے لیے بھی سیم ہے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں عادت یہ ہو گئی ہے جیسے انسان امام کہتا نہیں کہ فوراً لوگ الف اللہ اکبر کا الف نہیں نکلتا کہ فوراً رکوع میں پہنچ جاتے ہیں, فوراً سر اٹھا لیتے ہیں. اسی لیے ائمہ عام طور سے تاخیر سے کہتے ہیں. ائمہ اسی لیے تکبیرات تاخیر سے کہتے ہیں تاکہ پبلک سے کہیں جو ہے پبلک کی نماز نافذ ہو جائے. اگر آپ نے نماز امام سے پہلے سر اٹھا لیا یا امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے تو امام کی مخالفت ہوئی, پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی, پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اگر امام کی مخالفت آپ کرتے ہیں جان بوجھ کر کرتے ہیں, بات ہے امام کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اچھا بعض لوگ صرف امام کو دیکھ کر ہی وہ کہتے ہیں امام نے بھی اللہ اکبر نہیں کہا, وہ ایسے چکے تو وہ نہیں امام کی تکبیر ختم ہونے کے بعد ہم کبر الامام فکبروا, امام اللہ اکبر کہہ لے تب تم اللہ اکبر شروع کرو, اس کی آواز بند ہو جائے تب تم تکبیر شروع کرو, اس کے ساتھ ساتھ نہیں. امام کی ابتدا کرنے سے جیسے امام کھڑے ہونے میں آگے رہتا ہے ویسے ہر حرکت میں امام آگے ہوگا, آپ اس کے پیچھے پیچھے. یہ ضروری ہے, نہ تو بالکل ساتھ ساتھ رہیں گے, نہ اس سے آگے بڑھیں گے, اور نہ ہی بہت زیادہ پیچھے رہیں گے. امام جب سجدے میں پہنچ گیا, آپ اٹھنے والا ہے تو ہم سجدے میں جا رہے ہیں, یہ غلط ہے. امام سجدے میں پہنچا کہ فوراً ہم سجدے میں جانا شروع کریں. اللہ ہدایت ایسے امام کو اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ نے آپ اپنی ضرورت پوری شیخ ہم لوگ نا ابھی کیا کرتے ہیں ترتیب سے پوری خود کر نہیں چاہ کہ ہماری اتباع کرنا. کے بعد آمین فوراً کہنا چاہیے یا امام کا انتظار کرنا چاہیے؟ امام جب آمین کہہ امام کو بھی فوراً آمین کہنا چاہیے. اذا امن الامام فآمین, امام آمین کہے تو تم بھی آمین. اذا قال الضالین فقولوا آمین. تو اگر آمین کہنے میں امام کے ساتھ ہیں تو کوئی بات کوئی فرق نہیں پڑتا. ضروری ہے ساتھ. اچھا رکوع میں جائیے, رکوع میں ہتھیلی بالکل ٹائٹ رکھیے, ہاتھ دونوں ٹائٹ رکھے, گھٹنے کو ایسے مضبوطی کے ساتھ پکڑیے, اس طرح پنجہ سے پنجے سے بالکل ایسے مضبوطی کے ساتھ پنجے سے پکڑیے دونوں گھٹنوں کو. ہاں ہاتھ بالکل سیدھا کیجیے, اور پیٹھ اور سر سر جو ہے برابر ہے, نہ سر جھکا رہے نہ سر اٹھا. ہاں سر بھی لیکن آپ گھٹنا ذرا گھٹتا نہیں, آپ پیر بھی ٹائٹ ہو, قدم بھی ٹائٹ ہو, اور جو ہے ہتھیلیاں بھی دونوں جو ہے ہاتھ بھی ٹائٹ ہو, تو اس طرح جو ہے صحیح رہے. ہاں سر آپ ذرا سا اٹھائیے, نظر سجدے کی جگہ پر, سجدے کی جگہ پر, ہاں سجدے کی, ہاں ٹھیک ہے. اگر ہاتھ سیدھا ہو اور گھٹنے سیدھے ہو تو تمہارا پوسچر جو ہے وہ برابر سے آ ہی جاتا ہے. پیر سیدھا رہے اور دونوں ہاتھ بالکل ٹائٹ رہے تو یہ پوزیشن جو ہے وہ صحیح رہے. لیکن اگر ہاتھ سیدھے ہوئے ہیں یا پیر ایسے کیے ہوئے ہیں تو پیٹھ کا بیلنس صحیح نہیں. یہ پوسچر ہاتھ بھی بالکل ٹائٹ, تو پیٹھ بالکل صحیح رہے. برابر سے کرتے ہیں. آپ کو پوچھا تھا جن کے ہاتھ لمبے ہو, جن کے ہاتھ لمبے ہو, آپ کا ہاتھ ماشاء اللہ لمبا ہے, ہاتھ لمبا ہونے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لیتے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے کیسے جائیں گے سجدے؟ سر سمیع اللہ علیہ وسلم, ہاں سمیع اللہ علیہ وسلم کہیں گے سیدھے کھڑے ہوں.
समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हाथ बांधने की शेख हाँ? हाथ बांधना छोड़ना दोनों से। बांध रहे चाहे छोड़ दे, ये वक्ती जो है रफे दिन करना हाँ? चाहिए। दोनों से। हाथ बांधना कियास है, हाँ? हाथ बांधना जो कियास किया है नहीं, हाथ और बांधना कियास छोड़ने के हिसाब पे उसमें तो नहीं, हदीस है ना। नहीं छोड़े तो आप बताए थे ना कि सारी हड्डियों को, हाथों को अपनी जगह पर फिर आना चाहिए। रुकू से पहले कहाँ दिया? अपनी हालत क्या दिया? रुकू के पहले हाथ क्या? की रुकू की पहले की जगह पर सही आना चाहिए या अपनी अपनी खुद की जगहों पर सही आना उसके लिए क्या है? सही तो सही हाथ तो सीधा रहता है नॉर्मल। लेकिन रुकू के बाद दोनों चीजें दोनों जायज है, चाहे आप हाथ छोड़ दें चाहे हाथ बांधा दें। शेख साहब अफजल के अफजल के बेहतर क्या है? अफजल में इख्तिलाफ है उलमा का। हाँ, क़याम की हालत में अल्लाह के रसूल हाथ बांधते थे। सही बुखारी की जो रवायत है सहल बिन साद की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ क़याम में हाथ बांधते थे। अब क़याम चाहे रुकू से पहले हो या रुकू के बाद हो, दोनों क़याम में, तो इससे जो है उलमा ने, इससे मुल्बाज वगैरह ने इस्तेमाल किया जो हालत क़याम में अल्लाह के रसूल हाथ बांधते थे, तो ये भी क़याम ही की हालत है, इसलिए हाथ बांधना अफजल और बेहतर। और जो लोग कहते हैं कि जो है हाथ छोड़ देना चाहिए, वो लोग कहते हैं कि हाथ की असली तभी हालत ये है कि खुला रहे, Qiyam is what हालत है कि खुला रहे। इसलिए जो है जब रुकू के बाद कोई सराहत नहीं है खास तौर से, तो हाथ को खोल के रखना चाहिए, लटकाए रखना चाहिए। ये मामला है। इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया जब इस मसले के बारे में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि जब बांधता है वो भी सही है, खोल देता है तो वो भी सही है। इस बात है, इसमें डरने झोंकने की चीज़ नहीं। नहीं छोड़ना उठा करके बांधना, ऐसे छोड़ के ऐसे छोड़ देते हैं फिर बांध, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, रुकू से उठने के टाइम पे रफे दिन कैसे करेंगे? हाँ? उठते हुए ये अल्लाह अकबर बोलना है। हाँ, समी अल्लाहु लिमन बोलना है। तो रुकू से उठते वक्त उन्हें बाउल और समी अल्लाहु लिमन साथ में ना, एक साथ में। समी अल्लाह लिमन हम्दा बोलना है। हाँ वही नहीं, रुकू से उठते हुए समी अल्लाह लिमन हम्दा कहना है, अल्लाहु अकबर नहीं। क्योंकि अभी एक थोड़ा पीछे लेके तक लेडीज पे कवर है। वो समझ नहीं कुछ हो नहीं रहा है इधर। अच्छा चले ख़वातीन, उनसे माजरत है क्योंकि आज ये नमाज की मशक हो रही थी, इसलिए स्पीकर ऑन नहीं था। माफ करें। तो जो है सजदे में जाते हुए कैसे जाएंगे? सजदे में जाइए, सजदे में जाइए। सजदे में जाते हुए हथेली पहले पैर जमीन पर रखेंगे, फिर उसके बाद घुटना रखेंगे, उसके बाद सर। वो कंपलसरी है अगर किसी को रखने नहीं हो रहा। मामला ये है कि सुन्नत तरीका ये है, और अगर नहीं छोड़ पा रहा है तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह अपना मुकल्लफ करता है जितनी वसाअत है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी इस्तिताअत है उतना अल्लाह से डरो। सही बात है। तो ये आदत डालनी चाहिए। जब तक आदत नहीं बनती है तब तक मुश्किल लगता है। जब आदत बन जाएगी, अब जिनको आदत नहीं, जो आदत है हाथ रखने की, अब उनको कहो घुटना पहले रखो तो पहले उलट जाएंगे, पीछे उलट जाते हैं, कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, सजदे के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यबरुक कमा यबरुकुल बईर, तुम में से कोई शख्स ऊंट की तरह न बैठे। फल यदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, उसको चाहिए कि अपनी हथेली अपने घुटने से पहले रखे। वे जितने चौपाए हैं, अगला पैर उनका पैर होता है और पिछला पैर उनका हाथ होता है। इसीलिए
इंसानों के कदम की तरह उनका अगला पैर जो है उसी तरह होता है, घुटने उसी में होते हैं। जितने चौपाए हैं, ऊँट है या इसी तरह गाय है या भैंस है या घोड़े हैं, ये चौपाए जो हैं उनका घुटना आगे वाले दोनों पैरों में होता है और पिछला पैर आप देखेंगे वहाँ हमारे हाथ की तरह होता है, पतला होता है। अगला पैर उनका मोटा होता है, ताकतवर होता है, मजबूत होता है, और पिछला पैर जो होता है उन लोगों का कमजोर होता है अगले पैर के मुकाबले, जैसे हमारा हाथ है। जैसे इंसान के पैर मोटे होते हैं और हाथ पतला होता है, ये तो जानवर के पिछले पैर जो दोनों होते हैं वो टेढ़े होते हैं और पतले होते हैं। अगला पैर जो होता है वो मोटा होता है और घुटने उनके जो है अगले पैर में होते हैं। इसलिए चौपाई जब बैठते हैं तो वो घुटना पहले टेकते हैं, घुटना टेक करके बैठते हैं, हाथ बाद में जो है मोड़ते हैं। हाथ उनका पीछे होता है, पैर उनका आगे होता है। हाथ वो इसलिए बाद में मोड़ते हैं, घुटना पहले टेकते हैं। इसलिए उनकी मुखालफत का अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया कि ला यबरुक कमा यबरुकुल बहीर, ऊँट जिस तरह बैठता है तुम उस तरह न बैठा करना। फल यदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, तो तुम्हें चाहिए कि तुम घुटने से पहले हाथ रखो जमीन पर, घुटने से पहले हाथ जमीन पर रखो। इसलिए हाथ पहले टेकना चाहिए जमीन पर, फिर घुटना टेकना चाहिए। अच्छा, अब जो है बैठते हुए जब जाएंगे सजदा कैसे करेंगे? हाँ, सजदे में पेशानी और नाक दोनों रहे। कुछ लोग पेशानी रख देते हैं, नाक उठी रहती है। नाक और पेशानी दोनों जमीन पर हो, दोनों हथेलियाँ किबला रुख कीजिए, खुली हुई ना, उंगलियाँ बंद रहें, उंगलियाँ बंद होकर के जो है हथेली खुली रहे, किबला रुख रहे, और जो है कदम दोनों किबला रुख होकर जमीन पर। अक्सर ऐसा होता है कि कदम हम उठाए रहते हैं पीछे, और दोनों कदम मिले हुए हों, दोनों कदम मिले हुए हों, खड़े हों और उंगलियां किबला रुख हों। दोनों हथेलियां या तो कानों के बराबर रखें या कंधों के बराबर रखें जमीन पर। जमीन पर या तो कानों के बराबर जमीन पर रखें या कंधों के बराबर जमीन पर रखें सजदे में। और ना कि पूरा होना जरूरी नहीं है, दोनों कदम जरूरी है। क्या और जो क्या हाँ, पेट जो है रान से अलग रहे, पेट जो है रान से अलग रहे, रान से पेट अलग रहे। ये हाथ रहे और हाथ जो पहलू से भी, पहलू से अलग रहे, रान से अलग रहे, जमीन से अलग। हाँ, हाँ, मुझे से भाई जब जमात में हो, आप तन्हा हो तो मुबालगा कीजिए, तन्हा होंगे तो मुबालगा करेंगे, समझे? लेकिन मुबालगा मतलब ज्यादा जितना कर पाएंगे उतना, क्योंकि आपकी सफेदी ये नजर आता है। लेकिन अगर आप जमात में हैं, सब के अंदर हैं, तो हिसाब से करेंगे ताकि जो है कि दूसरे को अजियत ना हो, दूसरे को अजियत ना हो। हाँ, 7 हड्डियाँ जमीन पर होनी चाहिए। 7 हड्डियों में पहली हड्डी नाक और पेशानी एक समान होगा, नाक और पेशानी एक हड्डी, दोनों हथेलियाँ, दोनों घुटने, दोनों कदम, ये जमीन पर होना चाहिए। 7 हो गए। नाक और पेशानी एक, नाक और पेशानी एक शुमार किया गया है, दोनों घुटने, दोनों हथेली और दोनों कदम जमीन पर होना चाहिए। पाँव जोड़ रहे हैं पीछे, हाँ इसमें सवाल। हाँ, क्या? क्योंकि देखो अभी हम लोग अगर मैं बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ, ये सही है। हाँ ये सही, बस कोई कहता कि नहीं, इसको अगर हम लोग सब उंगलियां अगर किबला रुख करने की कोशिश करेंगे तो पैर हट जाएंगे। ये हो नहीं सकता, इस तरह से होगा। सब उंगलियां नहीं हो पाएंगी, छोटी उंगलियां नहीं होंगी। हमें अंगूठा अंगूठा उसके बगल की उंगली हो जाएगी, तमाम उंगलियां किबला रुख होना मुश्किल है। और अगर तमाम उंगलियां करते हैं पाँव तो जुड़ जाएगा, ऊपर का हिस्सा हाँ बढ़ जाएगा। ऊपर का हिस्सा भी जुड़ा होना चाहिए। हाँ
नीचे का हिस्सा उसको कादा में कैसे बैठेंगे? दोनों सदनों के दरमियान कैसे बैठेंगे? पैर में खड़ा करो ना, पैर खड़ा करो। पैर ये पैर, हाँ ये पैर खड़ा, हाँ ये इस तरह बैठे। ऐसे भी जायज है शेख? हाँ, दोनों सदनों के दरमियान जायज है, दोनों सदनों के दरमियान से भी जायज है, लेकिन बेहतर वही है कि इस पैर को बिछा लें, बाएं पैर को फैला लें और पैर इसको कैसे कैप्चर करो? हाँ, इस तरह बैठ सकते हैं। पीछे से पैर कैसे कैप्चर करो? दोनों सदनों के दरमियान बस ऐसा बैठा जा सकता है दोनों सदनों के दरमियान। नॉर्मल है नहीं, ये गलत। निकाल दे इसको, ये निकाल खड़ा कीजिए। नहीं, ये हाँ ये बैठ। ये पैर दायां पैर खड़ा रहे तो बायां पैर बिछा के उसमें बैठ जाए। ये जरा देखें। हाँ, सही आप। गलती भी हो जाएगा, इसी तरह बैठेंगे। पहले कायदे में भी इसी तरह बैठेंगे। दोनों सजदों के दरमियान बैठने की ये कैफियत है। और पहला कायदा जो है, पहला तशव्वुद तहियात जो पढ़ेंगे बीच वाला, उसमें भी इसी तरह बैठेंगे। बैठने की यही कैफियत है। बायां पैर बिछाएं और दायां पैर खड़ा रखें। और आखिरी कायदे में तवर्रुक करेंगे। हाँ, ये जो है पैर दूसरे फैला करके, हाँ ये इस तरह हाथ तो जो बताता हूँ, पहले तो बैठने का, तो बैठने में ज्यादा गलतियाँ करते हैं लोग, उल्टा सीधा जैसे पाते हैं वैसे बैठते हैं। हाँ थोड़ा सा हाँ परफेक्ट। जो है पिंडली के नीचे रहेगा। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन वो घुटना नीचे लगना जरूरी है? हाँ? सीधे नहीं, जरूर नहीं। लगना जरूरी नहीं है। घुटना नीचे जमीन पर लगना जरूरी नहीं, क्योंकि हर एक की कैफियत अलग होती है। अब वो असल मसला है कि पैंट पहनेंगे तो कोई भी कल सीधी नहीं रहेगी। जीन्स पैंट पहनेगा। हाँ, जीन्स और तो टाइट पैंट पहनेंगे तो कल सीधी नहीं रहेगी नमाज। हाथ पे जो है दायां हाथ जो रखेंगे, दोनों सजदों के दरमियान तो सीधा रखेंगे। दोनों सजदों के दरमियान दोनों हाथ सीधे जो है कुरान पर और घुटने पर रख लेंगे, कुरान और घुटने पर। लेकिन तशहुद में, चाहे पहला तशहुद हो या आखिरी तशहुद हो, दाएं हथेली ये दो उंगलियां बंद करें, इन दोनों का हल्का बना लें, इस शहादत की उंगली को खड़ी करें। शेख दिखा इधर कैसा? हाँ, ये हल्का बना लें दोनों। हाँ बस, अंगूठा ये दोनों मिलाकर हल्का बना लें और इसको खड़ी करें। इसको खड़ी करें और आहिस्ता आहिस्ता पूरी तहियात में। पहले एक तो सीखो यार, अभी जब तक सलाम ना करें तब तक जो है। अच्छा, ये जब हाथ रखते हैं ये घुटने और कान पे, हाँ, तो उंगलियां जो है वो सीधी होगी या नीचे होगी? अस्सलाम वालेकुम। निगाह रखनी चाहिए। हमेशा बताओ जरा डेमो क्या मतलब सर? निगाह तो सीधी की तरफ होगी ना, और बार बार इस पे लौटाते रहे। हाँ, तो ये सही है कि जो बैठे हैं अपने आप ऐसे करो, उंगली उठाओ ना, ऐसे करो, उंगली और सीधी करो, उंगली उंगली उठाओ, उठाओ सीधे उठाओ। ये दोनों बंद करो, ये हल्का बनाओ, हल्का बना लो और इसको खड़ी करो। सीधी करो, खड़ी करो, सीधी सीधी पूरी, थोड़ा कम करें, थोड़ा सा झुका के, सीधी पूरी और फिर उसके बाद जो है हरकत देते रहे आहिस्ता आहिस्ता। और वो वाला हाथ कैसे सही है? वो हल वाला हाथ ठीक है, वो सही है? हाँ ठीक। सीधा नहीं रहता, थोड़ा सा ये उंगली हाथ हम दिखाओ जरा। अरे कोई बात नहीं। उंगली हिलाने की कैफियत सही है। हाँ, वो नहीं रहा देखिए ऐसे आहिस्ता आहिस्ता। मतलब पूरा पूरे तशव्वुद में हाँ 90% सब गलत बैठते। उनके वुडू भी
सही नहीं हाँ वो वुज़ू भी सही नहीं करते अब उसको पता नहीं क्या करते हैं। वो वुज़ू तो भी क्या कहते हैं अपने मत्थे पे ऐसे मारते हैं और अपने पैर पे ऐसे ऐसे करते हैं औरतों की और मर्द की नमाज में कोई फर्क नहीं है। वो तो है कोई फर्क नहीं। ठीक है जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ना होता है आज मैं ज़्यादा लाया लोग ही नहीं है। इससे आप